Good morning, students. Now, I welcome you all once again in my class, and we'll continue the same chapter in today's lecture, uh, locomotion and movement. And in the previous class, we have studied about the types of muscles and uh, how these muscles are structurally, how what is their location, and what are their functions. And we have studied the detailing of the skeletal muscle or voluntary muscle, and just revising the content that is required for the today's lecture, the content that you connect with the today's class. So just listen carefully. This is the structure. As in the previous class, we have studied about the structure of muscle, skeletal muscle, that having a bundle of muscles. These are called fascicles, and each fascicle is surrounded by a fascia, a plasma covering, and then each fascicle muscle bundle having number of muscle fibers. These are called muscle cells also, and each muscle fiber is surrounded by sarcolemma with sarcoplasm. Uh, Sarcoplasmic reticulum are there for the storage of calcium ions, and these muscle fibers are also having parallelly arranged filaments. These filaments are called myofilaments or this microfilaments, myofilaments. Myo term is always related to this muscle. Myology is the study of the branch of biology that deals with the study of the muscle. So these myofibrils, they are formed by specific proteins. These two proteins are called actin and myosin. In today's class, we will discuss the detailed structure of these proteins also. These both are contractile proteins that provide the contractibility to the muscle fiber. And each muscle fiber having parallelly arranged light bands, and these in striated muscle, they form a alternate appearance, dark and light bands. Dark band is called I band, isotropic band, formed by actin filament, thin filaments, and the dark band is formed by myosin filaments, thick filaments. If we see the structure, these light bands are bisected by Z lines, these two Z lines, and this A band or dark band and isotropic band is bisected by a M line. That is not mentioned here, but this light color line you can see is a M line. And between two Z lines, the unit is called sarcomere, and this sarcomere is the functional unit of contraction. And this is the elaborated picture of this, the cartoon figure of this original picture. Here you can see that this is one sarcomere, two Z lines that provide the attachment of actin or thin filaments with them, and there are thick filaments present at the center, and they are parallelly arranged, and their ends are open. See, free ends are there. Actin filament are overlapping on the myosin or thick filaments, and these actin filaments basically slide over the myosin filament, thick filament. So thin filament जब slide करेंगे तो ये towards center आ जाएंगे, and there is a zone between this band that is called edge zone, and this edge zone means the area where there is no overlapping, only dark bands are there. So when the muscles are contracting, the length of the sarcomere reduced, and this edge zone जो है, that is eliminated from the sarcomere. So two Z lines come closer to each other, and there is no change in the length of the A band. A band का length उतना ही रहता है, सिर्फ two Z lines जो है वो एक दूसरे के closer आएंगी, sarcomere का length जो है वो कम हो जाएगा, edge zone eliminate होगा जैसे जैसे
से contraction होगा, और जब दोनों एक्टिन फिलामेंट यहाँ तक पूरे सेंटर तक आएंगे स्लाइड करते हुए ओवर, तो muscle is said to be in the complete contraction. So we will see this sliding filament theory. Mechanism of this muscle contraction is called sliding filament theory, because the fibers, these filaments are sliding, actin filaments are sliding over myosin filament, and there is a cross bridges, कैसे वो slide करते हैं, there is a particular mechanism for that we will discuss in today's class. And before that sliding filament theory of contraction of muscle, I am going to explain the structure of these contractile proteins. I'm just explaining through the picture. This first picture is the structure of actin filament, and each actin or thin filament is made up of two F actin. These two F actin, which are both F actin binded helically, हेलिकल मैनर में एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, एंड एफ एक्टिन जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन्स. ये जो ग्लोबुलर एक्टिन्स दिख रहे हैं जो बीच की फॉर्म में दिख रहे हैं, इनके मोनोमर्स मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं. सो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर of monomeric globular actins. Other than this, you have seen that there is a tropomyosin, one more protein that is also close to F actin. ये भी जो है ये भी closely run करता है along with the F actin. And a complex protein troponin is also there, जो ट्रोपोमायोसिन पे आपको कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे दिखाई दे रहा है. दैट troponin is present at regular intervals, and on the tropomyosin, in the resting state, a subunit of troponin जो है ये कवर रहते हैं, ये मास्क रहते हैं, ताकि जो एक्टिव साइड है वो क्लोज रहे जब मसल रिलैक्सेशन में है. और जब मसल एक्टिव होती है, जब कंट्रैक्शन होता है, तो ये ट्रोपोनिन जो है ये मास्क जो है वो रिमूव हो जाता है यहाँ से, और एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन इज ओपन, और जिससे एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो है वो एक लिंक बनता है, एक क्रॉस ब्रिज बनता है, जिसकी हेल्प से मसल फाइबर जो है वो contract करता है. So actin filament is formed by two F actin and tropomyosin and troponin. These three important main structures are present in the actin filament. Now come to the next myosin, which is a thick filament and forms the A band, and this thin filament forms the in the previous class we have studied that I band is formed by the thin filaments. जो light band है वो बनाते हैं, myosin जो है वो thick band बनाते हैं, dark band बनाते हैं. Myosin जो है that is also a polymerized protein है. इसमें भी मोनोमेरिक प्रोटीन मीरोमाइसिन होता है. मीरोमाइसिन इसकी यूनिट्स हैं, और जो एक फिलामेंट्स को बनाती है, एक थिक फिलामेंट को बनाती है. मीरोमाइसिन जो है उसके दो पार्ट होते हैं. वन इज हेड विद शॉर्ट आर्म एंड अ टेल. सो हेड और जो आर्म है दैट इज फॉर्म्ड बाय अ heavy मीरोमाइसिन, HMM बोलते हैं इसको, HMM heavy मीरोमाइसिन, और जो टेल पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय लाइट मीरोमाइसिन. और जो HMM कंपोनेंट हुआ यानी हेड और जो इसका आर्म है दैट प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स. हम देख सकते हैं ये जो थिक फिलामेंट है और मायोसिन का जो प्रोटीन है उसमें से इजेक्टेड है, projected है outward at a regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized
मायोसिन फिलामेंट। तो जैसे एक स्नेक जो है कॉब्रा किंग का अपीयरेंस होता है, ऐसा अपीयरेंस आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड दिस हेड एंड दिस आर्म, शॉर्ट आर्म फॉर्म्स द क्रॉस आर्म। जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है उसमें हेल्प करती है। और ग्लोबुलर हेड जो है इसमें एटीपीएज एंजाइम होता है जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है। एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन जब होता है, एटीपी के ब्रेक होने से ही एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर द कंट्रैक्शन प्रोसेस। सो दिस इज द रोल ऑफ एटीपीएज एंजाइम। और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है और ये एक्टिव साइट है जिसपे एक्टिन फाइबर जो है यहाँ पे अटैच होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड दिस शॉर्ट आर्म, ये दोनों मिलके क्रॉस आर्म बनाते हैं जो प्रोजेक्टेड है फ्रॉम द filament or from the myosin. So this is all about the structure of the contractile 2 protein. This is the structure of actin and this is the structure of myosin. Now come to the mechanism of muscle contraction. Muscles जो है we have already discussed, ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मसल्स जो हैं वो उनमें कंट्रैक्टिबिलिटी होती है, वो रिलैक्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में, और जब मूवमेंट होता है तो ये कंट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो कंट्रैक्शन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी। It is very clear from the that statement, sliding filament means filaments are sliding. तो filament जब slide होंगे तो that causes the contraction. This is called sliding filament theory and ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि there is a sliding of thin filaments over the thick filaments. Before that I would like to clear this picture. This picture is showing the sliding filament theory. Same picture है जो हमने structure में discuss किया था, that when muscle is in relaxed position, these actin filament, these are two Z lines. यहाँ पे two sarcomere है, as one sarcomere is there in between two Z lines, तो इस line से इस line तक another sarcomere है. Sarcomere are the functional unit जो contraction cause करते हैं. And muscle जब relaxation में है तो ये जो filaments हैं वो उनके बीच में कोई connection नहीं है, कोई bridge नहीं है, अपने आप slide नहीं करेंगे. इन filaments को, actin filaments को इन filaments पर slide करने के लिए एक bond चाहिए, एक pressure चाहिए, कोई mechanism चाहिए जो इनको खींच के इनको invert pull कर सके, तभी contract होगी muscle. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एज जोन ज्यादा है, सार्कोमियर का लेंथ इतना है, यहाँ पे सार्कोमियर का लेंथ कम हो गया है, और यहाँ पे जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो दो पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट मायोसिन पे स्लाइड कर गया, तो दैट कंडीशन इज द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन. एज जोन खत्म हो गया, यहाँ पे ये वाले फिलामेंट दोनों पुल हो गए. एक्टिन फिलामेंट्स जब पुल हो जाएंगे, थोड़े यहाँ हुए और पूरी तरह से यहाँ हो गए, तो दिस इज रिलैक्स, अ लिटिल contraction and the maximum contraction. So this actin filament slide over these myosin filament, and this filament sliding on it with the help of special mechanism. इनके बीच में जो प्रोटीन, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, इनके बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा. दैट क्रॉस ब्रिज पुल्स, यहाँ क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, यहाँ क्रॉस ब्रिज फॉर्म होंगे, तो ये क्रॉस ब्रिज जो है वो पुल करेंगे एक्टिन फिलामेंट को, ताकि दोनों जेड लाइन एक दूसरे के क्लोज आए और पूरा इतना क्लोज आ जाए, मसल पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. तो देयर इज ए डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ सार्कोमियर, टू जेड लाइंस आर कम क्लोजर टू ईच अदर. देयर इज नो चेंज इन द ए बैंड. ए बैंड जो ये डार्क बैंड है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसका लेंथ उतना ही रहा, डार्क बैंड्स का लेंथ इतना ही रहा. सिर्फ एक्टिन के जो फिलामेंट्स थे वो स्लाइड करते हैं मायोसिन पे, और स्लाइड करते हुए वो एकदम इतने क्लोज हो जाते हैं, पूरी तरह से ओवरलैपिंग पूरी हो जाती है. यहाँ पे पूरी नहीं थी, ये रिलैक्सेशन स्टेज है. नाउ कम टू द पॉइंट दैट हाउ दिस क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म. दिस इज द पिक्चर दैट शोइंग, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है. एक्टिन का वही सेम स्ट्रक्चर है. इसमें वी नो दैट देयर इज ए ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन होता है,
ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिव साइट को ओपन करता है। इनमें जो एक्टिन फिलामेंट है उनमें ट्रोपोनिन जो होते हैं, जो ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट रेगुलर ब्रेक इंटरवल्स पे प्रोटीन होता है, दैट ओपन दी एक्टिव साइट। और इधर जो हेड पार्ट है इसमें एक्टिव साइट होती है, तो ये दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज होता है। ये मायोसिन फिलामेंट है, आपको पहले भी बताया है कि स्नेक जैसा अपीयरेंस है, किंग कोबरा जैसा अपीयरेंस है। एंड ये मायोसिन फिलामेंट है जिसमें से हेड और जो क्रॉस आर्म है वो प्रोजेक्टेड होती है, और ये क्रॉस आर्म जो है उसका जो हेड पोर्शन है वो ब्रिज फॉर्म करता है। और यहाँ पे एटीपीएज एंजाइम है जो एटीपी को ब्रेक करता है इनटू एडीपी, और एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। तो हाउ मसल कॉन्ट्रैक्टेड? मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जब स्टार्ट होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल सेंड करता है। एज वी नो दैट देयर आर मोटर न्यूरॉन्स जो सिग्नल को लेके ब्रेन से, मूवमेंट के सिग्नल को लेके ब्रेन से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के सिग्नल को लेके ब्रेन से मसल्स में पास होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन जब मसल फाइबर से कनेक्ट होता है, मसल फाइबर की जो सार्कोलेमा जो कवरिंग है उस पे जब आता है तो एक मोटर यूनिट फॉर्म होती है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। देयर इज अ जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड ए मसल दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, जहां पे न्यूरॉन जो है, जो मोटर न्यूरॉन है वो कनेक्ट होता है मसल फाइबर से, मसल फाइबर की सार्कोलेमा से, and that part is called neuromuscular junction और motor end plate। तो motor end plate जैसे ही सिग्नल रिसीव करती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एंड प्लेट पे, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलाइन। ये एसिटाइल कोलाइन जो है इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो जनरेट करता है सार्कोलेमा जो कवरिंग है मसल फाइबर की, उसको, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसमें एक स्टिमुलस जनरेट करता है जो धीरे धीरे पूरी मसल फाइबर में स्प्रेड होता है, और मसल में स्प्रेड होने से मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन से सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन ने मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये मैसेज पास किया, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसने उस कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट किया, उस स्टिमुलस को जनरेट किया इन सार्कोलेमा कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड धीरे धीरे ये जो पूरी स्टिमुलस है पूरी मसल में स्प्रेड होता है, एंड दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। जो रिमेंबर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम आयन थे वो सारे सार्कोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का उसमें रिलीज हो जाते हैं। कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाने से ट्रोपोनिन यूनिट जो है वो बाइंड हो जाता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड होता है। यहाँ जो ट्रोपोनिन है जो ज्वाइन करेंगे, कैल्शियम के बाइंड होते ही वो साइट जो है ओपन हो जाती है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। एंड दिस एक्टिन फिलामेंट जो है ये नाउ इट्स रेडी टू मेक अ ब्रिज बिटवीन द विद द मायोसिन हेड। और इधर एट द सेम टाइम जो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो हेड पोर्शन में प्रेजेंट एटीपी है, एटीपी बाइंडिंग साइट है या एटीपी प्रेजेंट है, एटीपीएज एंजाइम एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर देता है जिससे मायोसिन हेड जो है वो एक्सपोज हो जाता है टू बाइंड विद द मायोसिन। तो इस तरह से दोनों की एक्टिव साइट ओपन हुई और दोनों के बीच में एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाता है। सी दिस क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड। क्रॉस ब्रिज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म जो है वो कनेक्ट हो रही है एक्टिन से। तो ये लाइट बैंड है, थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज जिसमें कैल्शियम का मेजर रोल है और ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिव साइट को ओपन करते हैं। Now ATP is enzyme hydrolyze करता है ATP को, एनर्जी रिलीज होती है, that is used by the process. Then ये जो फिलामेंट है, now see अब जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया और सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल है तो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ये इसको एक्टिन फिलामेंट जो है इनवर्ड पुल हो रहे हैं, ये ब्रिज उसको अंदर की तरफ पुल करता है, तभी ये स्लाइड कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉस ब्रिज जब फॉर्म हुए तो ये क्रॉस ब्रिज इन बैंड्स को एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ पुश करेंगे, सेंटर इनवर्ड पोजीशन की तरफ
पुश करेंगे जिससे वो क्लोज आते आते ओवरलैप हो जाएंगे. दिस इज द रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्म होंगे तभी एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करेंगे. So sliding is done with the help of these cross bridges, and these cross bridge pulls the actin filament towards the center of the A band. The Z line attached to these actins are also, दोनों Z line भी एक दूसरे के पास आएंगी जिससे सार्कोमियर जो है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी. सी, दोनों Z line एक दूसरे के क्लोज आएंगी जब यहाँ से पुलिंग होगी, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे और सार्कोमियर का लेंथ जो है वो शॉर्टन होगा जिससे मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी. दिस इज अ लिटिल कंट्रैक्शन, दिस इज मैक्सिमम कंट्रैक्शन. जब एक्सोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ओवरलैपिंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट्स की. सो दिस इज हाउ द contraction process takes place by making a cross bridges between actin and myosin, and that pulls the actin filaments in towards the A band, center of the A band. Two Z line come closer to each other, so there is a shortening of sarcomere and the contraction process fulfilled. And then when the muscle again wants to come to the relaxation position, so again there is a ATP and PI, phosphate and adenosine diphosphate जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, ATP फॉर्म हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज जो है वापस, सी दिस इज स्लाइडिंग हुआ, उसके बाद ये दोनों मिलके वापस रिलैक्स स्टेज में जाएंगे, एटीपी फॉर्म होगा और क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाएगा. तो ब्रेक हो जाएगा, फिलामेंट्स वापस अपनी पोजीशंस पे, यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गए तो वापस फिलामेंट वापस चले जाएंगे जैसे वो प्रीवियस रिलैक्स स्टेज पे थे. सो मेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर and the breaking of this is proceeding towards the relaxation. So this is how the contraction and relaxation process take place according to the sliding filament theory, and that perform the function of muscle contraction. So this is all about for today's class, and we will continue in the next. I hope things are clear. अगर regular classroom होता तो इसे हम with the help of pencils, pen या कुछ analogous model लेके इसको explain करते class में तो things would be more better. But don't worry, when the school will open or we will meet, we will explain again with the help of some analogous things to see how the contraction of muscle takes place. Thank you.